मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2.0 आना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो बहुत अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं आज मार्केट में। एक चीज जो मुझे रिस्की लगती है वो लगता है प्राइवेट इक्विटी बबल। आईपीओ तो आजकल एक एग्जिट पॉइंट हो गया है बड़े इन्वेस्टर्स का। May bring the next global financial crisis 2.0 soon. Invest rightly, switch timely is the 9th wonder of the world. मुझे सेक्टर बहुत अच्छा लगता है आपका, मुझे एमएस भी अच्छा लगता है, मुझे डिफेंस भी बहुत अच्छा लगता है, बट जिस वैल्यूएशन पे वो ट्रेड हो रहे हैं मुझे वैल्यूएशन अच्छा नहीं लगता। ये सेक्टर बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे हमें परपेचुअल बुल रन दिखता है तो आने वाले 10 से 15 साल के लिए। इंडिया इज द हाईएस्ट डेटा कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो फिर डेटा सेंटर की डिमांड क्यों नहीं है? तो वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थोड़ा अगर आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रो शेयर करना चाहें तो ऑडियंस को भी कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि whom they are listening to. All right. So I think we work for a corporate house for a long time. So I will probably the youngest country head in one of the leading groups, financial groups in India at the age of 28, where I was heading a larger team there. And then I become a co-founder for Ashika Global Family Office Services. I think this team, we have a team of 300 people across. We have office in Raheja, Altimus, Worli. And we manages most of the family offices in India who invest more than 100 crore rupees in Indian stock market and global stock market. अच्छा, okay. So we only serve family offices and make the investment happen. Okay. So Amit, conventional के बदले ना we'll start with something non-conventional. Okay. जो रैपिड फायर वाला जो बुलेट क्वेश्चन वाला राउंड ना एंड में स्टार्ट होता है, विल स्टार्ट इट विद द बिगिनिंग। तो आई विल हैव 10 क्वेश्चंस फॉर यू। Okay. So the first question is, what surprised you most in today's global market or global economy? US dollar as a reserve currency of the world. Okay, biggest risk in global markets? I think geopolitical risk. Biggest decision making risk for global fund managers? I think again geopolitical risk. Okay, riskier product in today's inflammatory environment? Fixed deposit. Fixed deposit. Okay. And what is the biggest dilemma for Indian investors and traders right now? So a fundamental analyst always say that you should buy a good stock at a cheaper valuation. That's fundamental analysis. On the contrary, the technical guy says that you should always buy the stock costlier because you should always buy when the market is going up. So at times, most of the retail investors or traders are confused that which view to follow, whether fundamental or technical, because they have completely divergent views on the market. और आज के मार्केट में अगर किसी स्टॉक को करेक्टली एवरेज करना है तो? देखिए, एवरेज करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप एवरेज करेंगे प्राइसिंग के अंदर या आप एवरेज करेंगे टाइमिंग के अंदर। एंड हमें लगता है आपको एवरेज दोनों चीज़ों में करना चाहिए, एक अच्छे प्राइस के ऊपर भी और एक अच्छे टाइम गैप के बाद भी। अगर आप बहुत जल्दी उसको प्राइस में एवरेज करेंगे तो हो सकता है अगर ब्रॉडर मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको और पैसा लगाना पड़ेगा एट ए लोअर लेवल। तो आपको थोड़ा टाइम के बाद और एक अच्छे करेक्शन के बाद आपको स्टॉक को एवरेज करना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन, बिगेस्ट मिस्टेक अ पैसिव इन्वेस्टर मेक्स? बाय रिमेन इन्वेस्टेड इन अ रॉन्ग एसेट क्लास फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और वो कौन सा सिटी है जिसको स्टार्टअप सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है? आई थिंक इंडिया। Okay. And what is the difference between a good stock and a bad stock? I think it's only your entry price make a good or bad, right? Even if you get into a good stock at the wrong price, it's a bad stock for you. Okay. अभी biggest investor myth क्या है? Biggest investor myth is अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा, पर ये हकीकत नहीं है। Okay. क्योंकि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर निफ्टी के स्टॉक में तो इन्वेस्ट करता नहीं है। दे जनरली इन्वेस्ट इनटू स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, दो स्टॉक्स, राइट? एंड दे हैव नथिंग टू डू विद निफ्टी। Okay. ये बिगेस्ट मिथ है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। Okay. And also right now a follow-up question on this. अभी आप जो बोल रहे हो ना, कि अभी बोला जाता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2.0 आने वाला है, आपको लगता है आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2.0 आना चाहिए और आई थिंक बाय 2026-2027 इट शुड बी सून। क्यों आ सकता है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं आज मार्केट में। जैसे उसमें सबसे पहले जो मुझे रिस्की लगता है वो लगता है क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसीज, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसका मार्केट कैप लगभग आज जो पीक पे था तो $4.3 ट्रिलियन था और लास्ट 2 महीने के अंदर वो करीबन 20% तक, आई थिंक 30% तक गिर चुका है। बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप जो अराउंड $3.3 ट्रिलियन के आसपास है। मुझे लगता है ये रिस्कीएस्ट एसेट क्लास है
जिसकी वजह से शायद हमें बहुत जल्दी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2.0 देखने को मिलेगा। ओके ओके। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो मुझे रिस्की लगती है वो लगता है प्राइवेट इक्विटी बबल। अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड के जो टॉप 20 स्टार्टअप्स हैं, मैं अगर यूएस की बात करूं, मैं इंडिया की बात करूं और मैं यूरोप की टॉप 20 स्टार्टअप्स की बात करूं जो रिसेंटली गॉट फंडेड इन 2021, हमारी रिसर्च टीम ने उनका एक डेटा निकाला। एंड ट्रस्ट मी भरत भाई, द मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप valuation round which they raised at 2021, they are 70% down. They have already corrected by 70% from their peak valuation from 2021. So ये जो bubble है, ये कब bust होगा I don't know, but I think 70% is already busted. But I think still there's a lot of steam in this which will go bust over a period of time. But the biggest ever risk would be the cryptocurrencies. प्राइवेट इक्विटी का तो आपने बात कर लिया, आईपीओ के बारे में भी बता दीजिए। देखिए आईपीओ तो आजकल जो है एक एग्जिट पॉइंट हो गया है बड़े इन्वेस्टर्स का जनरली। आपने काफी इन्वेस्टर्स में देखा, जैसे पेटीएम का हमने आईपीओ देखा, हमने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ देखा, और काफी कंपनियों के आईपीओ आप सब जानते हैं, मार्केट की इन्फॉर्मेशन है कि क्या रेट पे वो लोग अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड करते थे और उनका भाव क्या है। सो आई थिंक ये एक बबल तो मैं नहीं कहूंगा, बट मैं कहूंगा कि बहुत फेयरली वैल्यूड एट टाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, बट बबल जो है वो आई विल कम बैक टू माय पॉइंट, दैट इज क्रिप्टोकरेंसीज ऑफ द वर्ल्ड व्हिच मे ब्रिंग द नेक्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2.0 सून। ओके ओके ओके। एंड आल्सो आपका एक you know you are very good at making catchy statements and also like catchy quotes. आपका एक कोट है या मतलब स्टेटमेंट मान लीजिए या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी मान लीजिए, आप बोलते हो इन्वेस्ट राइटली एंड स्विच टाइमली। तो इसके बारे में थोड़ा आप एलॉबरेट करोगे? देखिए ये हमारा ऐसा बिलीफ है कि इन्वेस्ट राइटली, स्विच टाइमली इज द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब तक हम सब लोग, जो भी अपने ऑडियंस हैं, जो भी हम सब लोग हैं, वो जानते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड विच इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो हमारी टीम का ऐसा मानना है विद लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू राइट अवे कि ये जो 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है उसको हम इन्वेस्ट राइटली, स्विच टाइमली कह सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको 3 तरीके के एग्जांपल देता हूँ। नंबर 1, किसी भी देश की बात करते हैं, पहले मैं देशों की बात करता हूँ, देश के बाद कंपनियों की बात करूंगा और उसके बाद स्टॉक मार्केट की बात करूंगा। ये 3 एग्जाम्पल से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समझा पाऊँ ऑडियंस को कि ये 9th वंडर ऑफ वर्ल्ड क्यों है। सो नंबर 1, हम देशों की बात करते हैं। 1995 के अंदर जापान का जीडीपी कितना था? $5 ट्रिलियन। यूएस का जीडीपी कितना था? लगभग $5 से $6 ट्रिलियन। और यूरोप भी लगभग उसके आसपास ही ट्रेल करता था, यूके एंड यूरोप ऑल टुगेदर पुट टुगेदर, राइट। उसे उनका बिजनेस मॉडल क्या होता था? मैन्युफैक्चरिंग। कोई तब आईटी सर्विसेज नहीं हुआ करता था। आईटी सर्विसेज आया सन 2002 के बाद, जब पहले Y2K का बबल क्रस्ट हुआ, उसके बाद फिर आईटी कंपनी, इंटरनेट कंपनियों ने टेक ओवर करना शुरू किया। उस टाइम पे जब जापान, यूरोप और यूएस अपने पीक वैल्यूएशन के ऊपर होते थे, राइट, तब यूएस ने स्मार्टली एसेट हैवी बिजनेस मॉडल विच इज मैन्युफैक्चरिंग से मूव किया एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो यूएस 5 या 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, वह लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर, 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया। यह है द पावर ऑफ स्विच टाइमली। ठीक है, जापान पिछले 30 साल से $5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास स्टेबल है। 30 साल से उस इकोनॉमी में कोई इन्फ्लेशन नहीं है। अब जाके 1.5-2 साल से इन्फ्लेशन आना शुरू हुआ है, उससे पहले तो वो डिफ्लेशन में था। ठीक है, तो वो स्विच टाइमली नहीं कर पाया, तो वो इकोनॉमी पीछे रह गई। यूरोप का स्टॉक मार्केट 1995 में, यूरोप का स्टॉक मार्केट यूएस स्टॉक मार्केट से 35% प्रीमियम पे था, बिकॉज यूरोप वॉज यूरोप and US was nowhere near to Europe, right? And today in 2025 यूरोप स्टॉक मार्केट जो 35% प्रीमियम पे था, वो 35% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है यूएस मार्केट के। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईटी को अडॉप्ट नहीं किया। ऐसी कितनी कंपनियां आप जानते हो यूरोप के अंदर जो आईटी के अंदर बहुत, या बिग 7 में से कितनी कंपनियां आईटी की जो यूरोप में बेस है या जापान में बेस है? सब कुछ यूएस बेस है, राइट? तो ये स्विच टाइमली जो यूएस ने किया एसेट हैवी बिजनेस मॉडल से एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के ऊपर, दैट्स व्हाट मेड हिम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पहला एग्जांपल था किसी देश का।
अब हम बात करते हैं कि भाई क्या देशों में ही एग्जाम्पल चलता है या कंपनियां भी इसको फॉलो करती हैं या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस भी इसको फॉलो करते हैं। तो हम सबसे बड़े जो हमारे देश के सबसे रेपुटेटेड ग्रुप है वो है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने 1930 या 40 के अंदर टाटा मोटर और टाटा स्टील कंपनियों को शुरू किया था। बिहार की तरफ से कहीं उन्होंने शुरुआत की थी इन कंपनियों की, ठीक है। ये दोनों ही टाटा मोटर और टाटा स्टील ये एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। और इन्होंने टीसीएस शुरू किया 1996 या 1998 या समवेयर 2000 के अंदर फॉर्मेशन हुआ कंपनी का, फिर बिजनेस आना शुरू हुआ एंड 2000 के बाद टीसीएस की ग्रोथ आनी शुरू हुई। और आज मुकाम ये है कि टीसीएस एक तरफ और टाटा ग्रुप की सारी कंपनियां एक तरफ। टाटाज ने भी एसेट हैवी बिजनेस मॉडल से जो कि मैन्युफैक्चरिंग था उससे एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में शिफ्ट किया और अपने आप को टाटा ग्रुप बनाया। यस एब्सोल्युटली। ये दूसरा एग्जाम्पल है जहां हमने कंपनियों की बात करी। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, जिसके लिए हम आज बात करने के लिए बैठे हैं हम लोग साथ साथ, ठीक है। स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स में जो 1985 में 30 स्टॉक होते थे, क्या आज भी वही 30 स्टॉक है जो 1985 में सेंसेक्स में होते थे? नहीं। आज सिर्फ 7 स्टॉक्स हैं जो आज 1985 वाले सेंसेक्स के आज इंटैक्ट हैं। 23 स्टॉक्स आर स्विच आउट। तो जब हर बड़ा देश ये फॉलो करता है, हर बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप ये फॉलो करता है, इवन सेंसेक्स और निफ्टी ये फॉलो करते हैं, तो हमें इसको फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए? दैट्स व्हाई वी से इट्स अ 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके। इन्वेस्ट राइटली, स्विच टाइमली। तो अभी आप जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो दैट इज यही प्रिंसिपल उसको गाइड करता है। व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज, मैं आपके कंपनी रिपोर्ट देख रहा था ना, तो अगस्त 2024 से लेके अगस्त 2025 तक, राइट, वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था। इन द सेम टाइम पीरियड यू हैव अचीव्ड अबाउट 36.5% ऑफ रिटर्न। तो ये रिटर्न अचीव करने के पीछे सिर्फ यही प्रिंसिपल है? अभी आपने एक्सप्लेन किया, कुछ और भी है? यही प्रिंसिपल है हमें, और ये एग्जायर है हमारा जो रिसर्च रिपोर्ट है वो हम निकालते हैं, हम स्टॉक्स में एंट्री करते हैं, फिर उनसे एग्जिट करते हैं, और ये एग्जायर का फॉर्मूला है जिसके थ्रू ये कैलकुलेशन रिटर्न का आया है। आप ये मान के चलिए, हमें लगता है जब भी कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो हम उसमें इन्वेस्ट करवाते हैं, और हमें लगता है जब वो फेयरली वैल्यूड हो जाता है तो हम उससे निकल के फिर दूसरे अंडर वैल्यूड स्टॉक के अंदर चले जाते हैं। जब दूसरा भी फेयरली वैल्यूड हो जाता है तो हम तीसरा स्टॉक निकाल लेते हैं, और हमारी रिसर्च टीम हर महीना 3 स्टॉक रिपोर्ट निकालती है जो हमारी मंथली मैगजीन है उसके अंदर, एंड उसके थ्रू ये लोग एग्जायर कैलकुलेट करते हैं जिसने ये ऐसा रिटर्न दिया। अगर आपने हमारे हिसाब से एंट्री एग्जिट किया तो आपका 36% रिटर्न बना वर्सेस निफ्टी 3%। तो ये इन्वेस्ट राइटली, स्विच टाइमली का ही एक एक्सटेंशन है, जिसके बारे में मैंने देश के बारे में, कॉर्पोरेट हाउस के बारे में, स्टॉक मार्केट के लिए बात किया। वही एक्सटेंशन हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के अंदर भी झलकता है। ओके। तो अभी आप अंडर वैल्यूएशन के बारे में बताते हैं ना? हाँ। समवेयर यू हैव कॉल्ड इंडिया द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक, राइट? Am I right? Absolutely. So I think I've given almost more than 20 speeches across the world. Say Monaco, Cannes, Russia, Italy, and all that, where I only talk about this. Or someone asked me, and most of the people, Global Forum, they ask me, which is the most undervalued stock in the world? And I say it's India. And it's not because मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, because मैं इस स्टोरी में एक्चुअली बहुत बिलीव करता हूँ, और इस स्टोरी को मेरे को लगता है आज से 10 से 15 साल तक ये स्टोरी बहुत अच्छा चलेगी, क्योंकि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जहाँ हमारी 60% पॉपुलेशन, रादर 65% पॉपुलेशन बिलो 40 है, ये अभी पूरी तरीके से ऊपर आने में अभी समय लगेगा, और ये इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे लिए बहुत फेवरेबल है, ये एक फैक्टर है। दूसरा, हमारे यहाँ डिमांड अनलिमिटेड है। आप ये टी शर्ट आप 1000 रुपये की बेच सकते हो, आप थोड़ा सा ब्रांड चेंज करो, आप इसको 10,000 का ही बेच सकते हो, और आप इसको 50,000 का ही बेच सकते हो, डिपेंडिंग व्हाट ब्रांड इट इज, एंड यू विल फाइंड बायर फॉर एवरी प्राइस पॉइंट। ये इंडिया है। तो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, आपका डिमांड, और तीसरा आपका डेमोक्रेटिक सेटअप। ये तीसरा डी है जो हमारी इस ग्रोथ स्टोरी को आगे लंबे समय तक कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत कंफर्ट है कि भाई अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है तो ट्रांसपेरेंसी है, और ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रस्ट है, और ट्रस्ट है तो पैसा फ्लो करेगा। राइट। तो बिकॉज पैसा वहीं फ्लो करता है जहाँ ट्रस्ट होता है, और जब पैसा फ्लो करता है तो एसेट क्लास
ऊपर जाता है. That's what we are seeing in India. You have seen the FDI number. Yes. Big time, right? So ये जो 3 चीजें हैं ये 10 साल तक हमें बहुत फेवर करेंगी अभी, और यही 3 हमारे डिफरेंशिएटर है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके ओके. तो अब इसी के रिलेटेड एक फॉलोअप क्वेश्चन है, अगर कोई अंडरवैल्यूड इकोनॉमीज या स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकता है या करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? व्हाट वुड यू टीच देम हाउ टू डू इट? सो ऑनेस्टली लोग जनरली पी रेशियो की बात करते हैं. लो पी डज नॉट नेसेसरली मीन कि स्टॉक बढ़िया है. कई बार अगर आपके बिजनेस में लो ग्रोथ है तो उसका लो पी होता है, बिकॉज मार्केट आपको ज़्यादा मल्टीपल देना पसंद नहीं करता है. ठीक है, तो जनरली अगर आपको एक्चुअली कोई अंडरवैल्यूड इकोनॉमी निकालनी है, जैसे हमने इंडिया की बात करी, या अंडरवैल्यूड स्टॉक निकालना है, तो आपको एक रेशियो देखनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं पेग रेशियो. ओके, दैट इज ग्रोथ. दैट इज पेग रेशियो इज पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ. से एग्जाम्पल, आपका स्टॉक का पी 20 है, पर उसका ग्रोथ रेट एनुअलाइज सेल्स का ग्रोथ रेट 30% है, तो आपको पेग रेशियो मिल रहा है 0.66 के ऊपर. इट्स अ ग्रेट स्टोरी बिकॉज आपको ग्रोथ सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है. ओके ओके. नंबर 1 एग्जाम्पल. नंबर 2, अगर आपका पी 30 है और ग्रोथ रेट भी 30 है, तो आपको पेग रेशियो मिल रहा है 1 का. यू आर बाइंग इट एट अ फेयर वैल्यू. बट अगर आपका पी 30 है और ग्रोथ रेट अगर आपका पी 30 है और ग्रोथ रेट 20 है, तो आपको पेग रेशियो मिल रहा है 1.25 का, जो महंगा है. ओके ओके. तो आपको किसी भी अंडरवैल्यूड चीज को अगर फाइंड आउट करना है, तो आपको पी को छोड़ के उसकी पेग रेशियो पे ध्यान देना चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द अंडरवैल्यूड स्टॉक्स एंड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. मतलब सस्ता मत ढूंढो, ग्रोथ सस्ता है वो ढूंढो. पर हाँ, ग्रोथ सस्ता है बट अच्छा दाम, अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर. आपको प्राइवेट इक्विटी की तरह 100 का मल्टीपल नहीं देना उसको. दैट्स व्हाट वी डिसलर्न. अंडरस्टूड. ओके ओके. एंड अभी अगर आप देखेंगे ना, तो हमारा जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे है. यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे है. मतलब जो भी आप एसेट क्लास देखोगे तो एवरीथिंग इज एट ऑल टाइम हाई. करेक्ट. तो ऐसे टाइम पे अभी आपने बोला ना कि इंडिया इज द मोस्ट अंडरवैल्यूड स्टॉक. तो अगर ये है, अगर इफ दिस इज ट्रू, देन व्हाट इज द फेयर वैल्यू? So I think India is most undervalued for sure. Indian Nifty is trading around a P multiple of 23. Okay. Which is a substantially a low valuation compared to its historical averages. Number 1. Number 2, so I am bullish on India, but I'm not buying it now. Because I see a fear in US stock market. Because to me, the US stock market looks highly overvalued. To me, cryptocurrencies looks highly overvalued, where I said the next bubble will come out and burst it. And whenever there is a crash in a cryptocurrency or a private equity bubble or AI bubble in NASDAQ and in US, you will find a rub-off effect in Indian Nifty as well. So I'm not a buyer, but I am certainly accumulating quality stocks in India right now. So it's a more accumulation phase rather than outright buy. I will buy when I see there is a pain in the market, and I will be outright buyer for Indian market, not for the US. But right now, do you see that pain because of which you are accumulating? I think pain is too much there in mid cap and small cap. Large cap still are in a trading range, but there's too much of pain in mid cap and small cap. I don't know how much you have tracked. If you go to Nifty 2000 stocks, right? Most of the stocks in Nifty 2000 or Nifty 3000, if you see the stocks, Nifty 2000, right? They are down anywhere from 10%. They are down from 10% to 40 to even 50% from their lifetime high. And that's how it is. Okay. So, but Nifty is an all-time high almost. Yes. So, Nifty is not reflecting the real pain in mid-cap and small cap. I'm sure your audience can feel it because they generally invest into mid-cap and small cap. And their portfolio, most of the investor portfolio is bleeding nowadays on a mid-cap and small cap. Correct. तभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप ही प्रेफर करते हैं, राइट? करेक्ट. मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स. करेक्ट. That's a pain, and that's why I said that's the biggest myth कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा. ये सही नहीं है भरत भाई. यस. क्योंकि आप निफ्टी के स्टॉक में पैसे नहीं लगाते हैं. अगर मान लीजिए ना कि अगर मार्केट में पेन नजर आ रहा है, एंड इफ से लाइक सम ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक दे आल्सो वांट टू पिक क्वालिटी स्टॉक्स, देन व्हाट शुड बी द अप्रोच क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हो बेसिकली क्वालिटी स्टॉक्स पिक करते टाइम? देखिए, हमें लगता है कि कोई भी कंपनी, हम
3-10 पैरामीटर लेते हैं अगर हमें कोई फिल्टर करना है स्टॉक ऑन अ पॉजिटिव साइड। नंबर 1, जिस भी कंपनी का ROE और ROC 10% से ऊपर है, हम केवल उसी स्टॉक को कंसिडर करते हैं फॉर द फर्स्ट फिल्ट्रेशन। नंबर 2, आपका सेल्स ग्रोथ 10% से ऊपर होना चाहिए लास्ट 3 साल का या 5 साल का, डिपेंड विच इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड आपका प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% से ऊपर होना चाहिए फॉर लास्ट 3 to 5 ईयर। बिकॉज अगर आप 10% की ग्रोथ को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंडिया के नॉमिनल GDP जो कि लगभग 11 से 12% का है, नॉमिनल GDP, आप उसको भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाई आई शुड टेक दैट स्टॉक व्हिच कैन नॉट इवन बीट इंडिया? आई एम लुकिंग फॉर नेक्स्ट मल्टीबैगर, सो ऑफ कोर्स दे हैव टू at least perform twice what Indian economy is performing as of now. So ये फर्स्ट फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद कुछ क्राइटेरिया होते हैं, प्रमोटर का बैकग्राउंड, कंपनी का मैनेजमेंट, उसका एंड इन द लास्ट उसका प्राइस पॉइंट। बिकॉज हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर एक अच्छा स्टॉक हमें बहुत महंगा मिलेगा तो हम नहीं खरीदेंगे। ओके हमें अगर अच्छा स्टॉक सस्ता मिलेगा विद लोअर पैग रेशो हम जरूर खरीदेंगे। सो वी आर अ वैल्यू इन्वेस्टर्स। सो आप ग्रोथ को अंडर वैल्यूड जोन में खरीदने वाले इन्वेस्टर? एब्सोल्युटली, ग्रोथ को सही दाम पे खरीदने वाले इन्वेस्टर। ओके। और अभी आपने ये 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बताया ना, हाँ, इन्वेस्ट राइटली, स्विच टाइमली, तो डज दैट आल्सो अप्लाई टू रियल एस्टेट? 100%। आई डोंट नो हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ मुंबई। आज नरीमन पॉइंट में जो भाव 20 साल पुराना था, सन 2005 के अंदर जो भाव था, वही भाव आज भी है, लगभग 10-20% हियर एंड देयर। जबकि गोरेगांव में वो भाव 10 गुना हो गया है। ओके। तो जिसने नरीमन पॉइंट से गोरेगांव स्विच नहीं किया उसका पैसा नहीं बना। एग्जाम्पल है बॉम्बे का। अब मैं बात करता हूँ दिल्ली की। जिसने सन 2000 में चांदनी चौक से गुरुग्राम में या नोएडा में शिफ्ट नहीं किया, उसका पैसा नहीं बना। क्योंकि चांदनी चौक में तो दाम 20 साल पुराना है, पर गुरुग्राम और नोएडा में भाव 20 गुना हो गया है ऑलरेडी। आई रिपीट, चांदनी चौक में तो दाम 20 साल पुराना है, स्टैग्नेटेड है मोर और लेस, ठीक है, बट गुड़गांव और नोएडा में भाव 20 गुना हो गया है। तो स्विच टाइमली वर्क्स इन एवरी एसेट क्लास, whether it's equities or it is real estate or even within the asset class it is gold or even cash is an asset class at times. So last September 2024 when we exited the market, cash was also an asset class, because if I wouldn't have exited, we wouldn't have exited at that moment of time, our portfolio would also be down by 20 to 30%, the way it is happening with most of the investors now. Yes. So at times even cash is also an asset class, but you should know when you have to get into cash as an asset class. When I say cash, it is mostly arbitrage fund or liquid fund or even fixed deposit. That's equivalent to cash for me. Understood. Okay. And are you a believer in dead stock theory? I'm completely a believer of it, because I think most of the stocks you will find in micro cap and small cap over a period of time, you will find they are dead. Even in S&P 500, if you see from year 2000 till now. पहले आप थोड़ा सा डेड स्टॉक थ्योरी क्या है वो बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे? So डेड स्टॉक थ्योरी प्रिंसिपल हम क्या देखते हैं? प्रिंसिपल में कि भाई मुझे लगता है कि anything which is in a hype, okay, which is in a hype, I think generally we avoid it. Okay. So that's our way of looking at it. So in example, if you go to 2004, 5, 6 or 2007, 8, real estate stocks were booming like anything. The DLF IPO has come around 1200 rupees in 2008. And today we are at 2020, almost 2026. DLF has not touched that price yet again. Okay. Even a company like JP Associate, Unitech of the world, जिनके स्टॉक 500 रुपए के होते थे, वो आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जो भी बहुत हाइप में हो, आपको उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि हाइप के ऊपर जनरली आपको बहुत वैल्यूएशन बहुत महंगा मिलता है, और उस महंगे वैल्यूएशन पे अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपका पैसे बनाने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इट्स बेटर दैट आपको उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में भी बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं। The boring is new sexy. You can talk about it. Yes. Anything which is boring, जहाँ कोई बात नहीं कर रहा है, they are saying ये मर गया है, खत्म हो गया है, बट आपको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल इंटैक्ट है, मैनेजमेंट इंटैक्ट है, और इंडस्ट्री की ग्रोथ है। अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो वो कंपनी अपने आप, हो सकता है टेम्परेरी दे कैन हैव अ सेटबैक,
अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कंपनी ग्रो हो जाएगी, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो और मैनेजमेंट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस का अच्छा है तो कंपनी ग्रो कर जाएगी. बट यूफोरिया वाली चीज़ों से आपको जनरली में रिस्क ज़्यादा होता है. ओके ओके. सो इस फेज में तो लगता है कि प्रेजेंटली जो आईपीओ का जो क्रेज चल रहा है ना, दैट इज लाइक मतलब पहले आईपीओ मतलब वैल्यू वाला सिनेरियो था. अभी आपको लगता है कि आईपीओ काइंड ऑफ मूवी प्रमोशन बन गया? मैं काफ़ी तक ऐसा मानता हूँ. Yeah. इसलिए जनरली वी स्टे अवे फ्रॉम IPOs unless we find a compelling valuation on the table, because nowadays IPO is more exit strategy for the large investors rather than making a money for retail investor in the longer run. आप IPO लो, अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आप लकी हो, और आप अलॉटमेंट वाले दिन निकल जाओ, बहुत बढ़िया है. आप सोचो कि मैंने IPO पे लिया है 1994 के अंदर, लाइक इन्फोसिस लिया था, और अब मेरा पैसा 200 गुना हो जाएगा, तो वो होने वाला बहुत मुश्किल लगता है हमें. ओके ओके. बिकॉज मार्केट्स में अभी वो उतने अंडर वैल्यूड चीज़ें आती नहीं है. सब कुछ बहुत फेयरली वैल्यूड आता है बिकॉज ऑफ प्राइवेट इक्विटी कल्चर विच इज इनकलकेटेड इन लास्ट 10-15 ईयर्स. ओके. सो कुछ भी सस्ता नहीं मिलता है IPO के अंदर अभी. ओके. तो कुछ टाइम पहले ना आपने ये 30-30-40 वाला फ्रेमवर्क सजेस्ट किया था. उसमें 30% allocation in banking, 30% in pharma, 40% in PSUs, right? So what was the logic? मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या था इस मिक्स? देखिए, आई थिंक उसके पीछे लॉजिक तो बढ़िया था कि वो अंडर वैल्यूड थे, और आज इसी कॉम्बिनेशन ने आपको लगभग 15 से 18% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर, जबकि निफ्टी ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है. सो लॉजिक रिमेन द सेम. व्हाट आई सेड, दे वर अ वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी. जो निफ्टी की जो रैली आपने देखी है 22,000 से लेके अभी 26,000 तक की लगभग, वो सिर्फ बैंक निफ्टी की रैली है, और बैंक में इसमें ऑलरेडी हमने अच्छा वैल्यूएशन दे रखा है. फार्मा हैज डन ग्रेट एंड PSU इज ऑल्सो डन अ ग्रेट since that entry point. Okay. So it's all about we are a value investor. ये तीन combination में हमने we have made a excellent return out of it. Okay. तो इसमें आपने ट्रिगर्स क्या देखे थे बैंकिंग में, फार्मा में, PSUs में? ट्रिगर या वैल्यूएशन के I पॉइंट think ऑफ व्यू? valuation और I say peg ratio. I'll Okay. repeat that. Okay. Because valuation is always a matter of relative performance, right? And valuation हमें लग रहा था कि इनकी growth ज़्यादा है और वैल्यूएशन अभी कम मिल रहा है. It's better we play with this. And they come with lot of safety. वो बैंकिंग में ज़्यादा रिस्क लगता नहीं. इंडिया का साइकिल अभी पॉजिटिव चल रहा है. PSUs में हमें एटलीस्ट रिस्क कहीं नहीं लगता, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट एटलीस्ट लाइक JP एसोसिएट और यूनिटेक बैंकर्स रिस्क लगभग ना के बराबर है. ठीक है. और तीसरा फार्मा, बिकॉज वी आर द लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. मुझे लगता है कि फार्मा में एक अच्छी थ्योरी, हमने अच्छा प्राइस पॉइंट पकड़ा, and we played out fully to pharma cycle. Okay. So combination has made great money for us. So मतलब सेक्टर्स मूव इन साइकिल्स, तो आप साइकिल्स पकड़ते हो? हाँ, हम साइकिल का लोअर एंड पकड़ते हैं जहाँ से हमें लगता है कि ये बाउंस होने वाला है. अच्छा, ओके. हाँ, हम टेक्निकल के साथ नहीं जाते हैं कि ये ऊपर तो और ऊपर, ऊपर तो और ऊपर. जब हमने एग्जिट पॉइंट दिया था लास्ट सितंबर 2024 के अंदर, जैसा कि आपने काफ़ी पॉडकास्ट में और मीडिया इंटरेक्शन में देखा होगा, इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर या बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर, तब लोग 30,000 निफ्टी की बात कर रहे थे, और हमने कहा था हम निकल रहे हैं निफ्टी से 26,000 के आसपास. सो आई थिंक टुडे आई कैन से विद लिटिल lot of humbleness that we were right in exit point, and we were right in making cash as an asset class that moment of time. Okay. We save our portfolio from deterioration of -20% to -40%. That's how it is. Okay, okay. And अभी ये बोला जाता है ना कि like आप भी इस पे बिलीव करते हो, आई डोंट नो, Nasdaq is the new Nifty, आपने बोला है. So I think recently I have given an interview to Economics Times on that. You will find that in Economics Times, the time has come to move from Nasdaq to Nifty. Because Nasdaq is giving you an earning yield of less than 3%. Less than 3%. And you know that equities are the riskiest asset class in the world. Do you agree? The riskiest asset class is giving you a return of less than 3.5%, right? And US government security is giving a return of 4.3%. The safest asset class in the world is giving you 4.3, safest. And the riskiest asset class is giving you a return of less than 3%. Which one you will buy? You will buy the safest asset class with higher yield, or you will buy the riskiest asset class with lower yield? What is your choice? Obviously, safer asset with higher yield. Absolutely. So you will buy either US GSEC, also because US GSEC is still a temporary phenomenon. But ultimately, money will move into equities. And in equities, I think Nifty at a PE of around 22 to 23 is highly undervalued today. So that's where we said that the time has come. In that Economics Times interview, I said time has come to move from Nasdaq to Nifty in a staggered way, in a
staggered way, not outright buy at this moment of time. Okay. Because the global market will settle down once we have once this any of the bubble go burst. Whether it's a race. Which one is going to burst first? Number one, cryptocurrencies, or AI, or private equity bubble. Okay. अभी कुछ टाइम पहले आपने बताया था ना कि you try to find sectors in a down cycle, Yeah. right? तो अगर कोई डाउन साइकिल में Down cycle से अप साइकिल में आ up cycle, which is V-shaped recovery. ट्रांजिशन में आ रहा हाँ, V-shaped recovery, or you can say U-shaped recovery. It's a U-shaped recovery rather we'll prefer, because they should go down, spend some time there, and then take a है turn. अच्छा, So okay. we buy it at the U. तो अभी आप कैसे डिसाइड करते हो कि उस टाइम कुछ कौन से फैक्टर्स कंसिडर करते हो कि वहां पर बाय करना है? I think mostly the demand and the sales growth projections. But nothing can happen in the business unless you have a sales. So Okay. sales and broader economy and macro factors give us that gist. And our team is excellent, trust me. In our office, you met our team, couple of Yes, them, yes, right? yes. They are excellent. They do their job very, very well. And that's how we try to find out those some macro indicators and micro indicators, and try to find out that where we find the value and where we can have this U-shaped recovery. ओके एंड राइट नाउ अभी आप कुछ ऐसे सेक्टर्स देखते हो जहां पर ऑलरेडी मान लो एक अप साइकिल कंप्लीट हो चुका है, या कोई ऐसा सेक्टर है जो डाउन साइकिल से अप साइकिल में ट्रांजिशन कर रहा है? देखिए, हमें लगता है लास्ट टाइम वी हैव बीन वेरी बुलिश ऑन बैंकिंग, एज आई सेड, Yes, बैंकिंग, yes. फार्मा एंड PSUs. यस आज के टाइम में हमें लगता है, आज हम बात कर रहे हैं मिड ऑफ नवंबर के अंदर, हमें लगता है आईटी का जो सेक्टर है ये अभी थोड़े टाइम के बाद एक अच्छी तेजी में आना चाहिए. ये जो अभी बट लेकिन हम थोड़ा टाइम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जब AI बबल में हम बेरिश हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ तो आएगा. बट इट्स अ गुड सेक्टर टू एक्यूमुलेट फ्रॉम 3 to 5 year perspective. Number one, not immediate, it's accumulation, it is not buy. ओके One. Number two, हमें लगता है PSUs जो अभी काफ़ी चल चुके हैं, अभी भी उनमें बहुत स्कोप है और बहुत वैल्यू बचा हुआ है. क्योंकि PSU का साइकिल लगभग 10 साल बाद चला, लगभग 8 साल बाद चला है. लास्ट PSU का जो पीक था वो 2014 के अंदर था. उसके बाद 2023 से चलना शुरू हुआ है. तो 8 साइकिल के वो U का जो नीचे वाला पोर्शन है उसने बहुत लंबा समय लिया टाइम कंसोलिडेशन के अंदर, पर अब चलना शुरू हुआ है. तो ये रैली थोड़ा लंबा चलेगी अभी. ओके ये हुआ दूसरा सेक्टर PSUs. और तीसरा हमें लगता है कि FMCG का जो वैल्यूएशन है वो अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से काफ़ी सस्ता है. ऑल्दो उस पर हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, बट रीजनेबली हम उस पर बुलिश हैं. अगर हमें वैल्यू बाय आउट ही करनी है विद फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो हम FMCG पे बैट करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहा है. हमें लगता है वहाँ ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं रहेगा. एंड जनरली FMCG सेक्टर इज अ डिफेंसिव सेक्टर विच गोज अगेंस्ट द ग्रोथ विच इज निफ्टी. ओके So that's why we are trying to hedge our portfolio internally. So ये 3 सेक्टर के कॉम्बिनेशन में और 3 थ्योरीज में we are trying to deploy our money. ओके कोई ऐसा सेक्टर है आपको लगता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है, अभी अप साइकिल के एंड में है काइंड ऑफ? I think सभी कुछ चल चुका है अभी. तो आपने बताया सभी कुछ बबल में है, बट so मुझे लगता है it's easier for me to answer कि अभी क्या नहीं चला है. मुझे लगता है उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे तो वी कैन मेक मनी. आई थिंक मैं आपका ना काम थोड़ा आसान कर देता हूँ. अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ हॉट सेक्टर्स है जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. एवरीबडी इज फोकस इज ऑन दैट. जैसे कि रिसेंटली गवर्नमेंट अभी ये जो सर्किट बोर्ड्स है उनके जो सर्किट बोर्ड्स वगैरह कंपनीज बनाते हैं उनको इंसेंटिव्स दे रहा है, ये कर रहा है. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का कंपनी है तो वो सेक्टर है बेसिकली, वो अभी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक लाइक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर इंडिया में क्या हो सकता है प्रेजेंटली जो सेक्टर है? डू यू थिंक इट इज़ अंडरवैल्यूड, ओवरवैल्यूड कंपेयर टू ग्रोथ? व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? देखिए, मुझे सेक्टर बहुत अच्छा लगता है आपका. मुझे EMS भी अच्छा लगता है, मुझे डिफेंस भी बहुत अच्छा लगता है. ओके बट जिस वैल्यूएशन पे वो ट्रेड हो रहे हैं मुझे वैल्यूएशन अच्छा नहीं लगता है. So I'll take a back seat. I'll rather go for value investing theory rather than chasing the growth at any price. I'm not in that approach. So we always follow a BAP approach. Which is BAP approach is buy at right price. This is called BARP approach. Okay. BARP. BARP approach. Okay. Buy at right price. Okay. So मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर्स हैं ये बहुत अच्छे सेक्टर हैं. मैं बहुत बुलिश हूँ. वो बहुत जॉब्स क्रिएट करेंगे, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे हैं. बस स्टॉक मार्केट के हिसाब से उनका वैल्यूएशन मुझे बहुत फेयर नहीं लगता है. मुझे लगता है और बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे पास है तो मैं उनको चूज करना पसंद करूँगा. ओके सो अभी ऐसा एक रिलेटेड सेक्टर है डेटा सेक्टर्स का,
and डेटा Data centers वेयरहाउसिंग का। डेटा सेंटर्स का डेटा सेंटर्स का एंड ऑल्सो अभी डेटा सेंटर्स में ना अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं दे आर ट्राइंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम लाइक उनका जो रियल एस्टेट जो एसेट्स वगैरह है उनको वो डेटा सेंटर्स में बदलने के लिए ट्रांजिशन कर रहे हैं. सो डू यू थिंक इसकी वजह से ऐसे कंपनीज में वैल्यू क्रिएट हो सकता है? देखिए ये सेक्टर बहुत अच्छा है तो हाँ. यहाँ पे हमें परपेचुअल बुल रन दिखता है फॉर आने वाले हम्म. 10 से 15 साल के लिए. ओके. ये स्ट्रक्चरल बुल रन थ्योरी है हम्म. जिसको आप बात कर सकते हैं और जहाँ हमारा कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन किसी और इकोनॉमी से नहीं है. ओके. EMS में क्या है, EMS का तो मेरा कंपटीशन चाइना के साथ है. कल को उसने कुछ भी अपनी पॉलिसी को ट्वीक एंड टर्न किया हमारे EMS में दिक्कत आ जाएगा. यस. कल को ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया हाँ. फिर EMS में दिक्कत आ जाएगा. पर जो डेटा सेंटर है ओके. गिवन द डिमांड एंड कंजम्पशन वी हैव इन इंडियन इकोनॉमी, हम्म. ये एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है आने वाले 10 से 15 साल तक के लिए हम्म. बुल रन में, तो इसको शायद मैं थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे भी खरीदना पसंद कर सकता हूँ डिपेंडिंग व्हाट प्राइस आई एम गेटिंग इन एंट्री इनटू. बट ऑफ कोर्स दिस सेक्टर इज अ ग्रेट सेक्टर फ्रॉम नेक्स्ट 10 to 50 ईयर पर्सपेक्टिव. एंड ऑल्सो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है ना, यू बेट ऑन फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट. मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव है आपका, मतलब जो जनरली जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है ना दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. या तो अभी आप ये पर्सपेक्टिव फॉलो करते हो तो वहाँ पर एक चैलेंज आता है एंड दैट चैलेंज इज कि अभी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे, जो भी देखोगे वो काइंड ऑफ लैगिंग डेटा है. करेक्ट. राइट, वो ऑलरेडी हो चुका है. अभी अगर आप फ्यूचर पे बेट करना चाहते हो तो आपको लीडिंग डेटा चाहिए. तो Correct. हाउ डू वी फाइंड दैट लीडिंग डेटा एंड ये जो जनरल लैगिंग लीडिंग डेटा का जो प्रॉब्लम है वो आप कैसे सॉल्व करते हो अपने डिसीजन मेकिंग? सो अभी क्या कुछ इन्वेस्टर बहुत गलती करते हैं. आई थिंक मैंने रिसेंटली भी कहीं एक इंटरव्यू में दिया है मीडिया के अंदर कि इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती क्या है. वो ये है, हर इन्वेस्टर जिसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेक्टर से अभी थोड़ा म्यूचुअल फंड की तरफ जाता हूँ, वो क्या करते हैं, वो valuesearchonline.com पे जाते हैं, moneycontrol.com पे जाते हैं या किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके. वो जाते हैं और पिछले 5 साल का और 3 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं म्यूचुअल फंड का, और जो उसने 5 साल में या 3 साल में या 1 साल में अच्छा परफॉर्म किया है उसके अंदर पैसे लगा देते हैं. ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का. ओके. या किसी भी सेक्टर को, बिकॉज आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ भरत भाई, आप पास्ट के लिए पैसा लगा रहे हैं या फ्यूचर पोटेंशियल के पैसा लगा रहे हैं? फ्यूचर पोटेंशियल. तो आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के पैसा क्यों लगा रहे हैं? बल्कि ये तो म्यूचुअल फंड भी यही कहता है that past performance does not guarantee the future performance. Am I right or wrong? Terms and conditions. Terms yes, and conditions, of course, right? yeah. Then why do you go to a valuesearchonline.com or a moneycontrol.com and see the past return? This scheme has done great in last 1 year. Let me put money. अरे बॉस, अगर उस स्कीम ने ऑलरेडी आपको 40% रिटर्न दे दिया 1 साल में, तो आपको क्या लगता है कि वो हर साल आपको 40% रिटर्न देगा एंड यू विल कीप दैट हाई एक्सपेक्टेशंस? नो, रादर यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अ ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस. That's how you should shortlist for your portfolio and for your investment, right? So हमें लगता है कि growth at a reasonable valuation is the only way to make money in the long run, and उसके अंदर काफ़ी आपको futuristic सोच रखनी पड़ती है. जैसे मैंने डाटा सेंटर की आपने बात करी कि how we identify these potential of future growth. हमें लगता है कि भाई इंडिया का जो कंजम्पशन है डेटा का, इंडिया इज द हाईएस्ट डेटा कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड right now. Yeah. Am I fair? Yes, yes. Right. तो फिर डेटा सेंटर की डिमांड क्यों नहीं आएगी? Okay. और जब इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही है डेटा प्रोटेक्शन की, कि डेटा को हम स्टोर करेंगे इंडिया के अंदर ही, विल नॉट गिव इट टू द क्लाउड और समवेयर एल्स ऑन ऑल दैट, यू नो दैट Indian soil पे ही करना है. करना है, राइट? तो डेटा सेंटर की डिमांड तो आएगी. तो ये एक परपेचुअल बुल रन है जहां मैंने कहा शायद मैं थोड़ा महंगा भी खरीद लूंगा. I compromise on my price. Otherwise, I always buy it at a lower price. Yes. So I compromise my price because I see the growth is visible for next 10 to 15 years, even 20 years. So आपको अपने आसपास का कंजम्पशन पैटर्न देखना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई दैट. जैसे एक पैटर्न था सन 2013-14 में, जिसने भी PSU से प्राइवेट थीम में शिफ्ट नहीं किया उसका पैसा नहीं बना. Yes. Am I fair? Yes, yes. कोल इंडिया आज भी 2014 के भाव के आसपास ही लगभग, राइट? Yes. PSU बैंक भी अब 2014 के बाद अब उस लाइफ टाइम हाई के आसपास आ रहे हैं 10 साल के बाद. Yes. पर 10 साल तो उन्होंने लोगों को बहुत पेन दिया, Correct. राइट? तो आपको थीम्स पकड़ने पड़ेंगे. देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर टू अ प्राइवेट सेक्टर. आपने वो थीम नहीं पकड़ा तो आपके पैसे नहीं बने. वहाँ पर. तो आपको फ्यूचर पोटेंशियल देखना पड़ेगा. अब जिसने PSU बैंक में लगा दिया 2014 में, पास्ट परफॉर्मेंस देख के उनका क्या हुआ? फंसे रहे 10 साल तक. Yes. तो इसलिए जो है आपको पोटेंशियल, फ्यूचर पोटेंशियल पैसा लगाना चाहिए rather than past performance. That's what my advice, that's what my belief is, and I'll respect everyone who's your audience to follow this approach going forward.
एंड मार्केट में ना एक अभी आपने ये बताया ना, ये जो थियरी है, दिस कम्स इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद अ व्हाट यू से वाइडली बिलीव्ड व्हाट यू से बिलीव व्हिच मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स फॉलो, कि मैं खरीदूंगा भूल जाऊंगा. हाँ, तो फिर आपको पैसे को भी भूलना पड़ेगा कुछ हद तक। और ये लाइटर नोट में था, डोंट टेक मी अदरवाइज। No. देखिए, हर इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर होता है, Yes. ठीक है। अगर आपको ऐसा करना है कि मैं खरीदूंगा और भूल जाऊंगा, तो आपको अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जाना पड़ेगा। Okay. जिन्होंने भी ऐसे करके पैसा कमाया, उन्होंने सन 1990 में या सन 2000 के अंदर या 2005-7 तक पैसे लगाए होंगे। उसके बाद उन्हें रख के भूला तो अच्छा रहा, क्योंकि तब इंडिया अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था। Okay. हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसको फेवर करता था कि आप खरीदो और भूल जाओ। पर आज आप वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो, यू आर नो मोर अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और नॉट इवन अ डेवलपिंग इकोनॉमी। Yes. वी आर ऑलमोस्ट अ डेवलप्ड इकोनॉमी टुडे। तो आप कैसे भूल सकते हो? आपको तो स्विच टाइमली करना पड़ेगा अगर पैसा बनाना है तो। सो स्ट्रक्चर होता है इकोनॉमी का। अगर आपको ऐसा करना है, आई एम सेइंग ये भी पॉसिबल है अभी कि पैसा लगाओ और भूल जाओ, पर आपको डिफरेंट देशों में जाना पड़ेगा। इंडिया में वो चीज़ अभी थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पिछले 20-25 साल से हमने हायर ग्रोथ देखी है। हायर ग्रोथ कम विद हायर इन्फ्लेशन। तो अब चीज़ें उतनी सस्ती नहीं है जो 25 साल पुराने जितनी सस्ती होती थी। तो सब कुछ बहुत फेयरली वैल्यूड है। तो आपको स्विच टाइमली तो करना पड़ेगा। कब चीज़ फेयरली वैल्यूड है, आपको उससे निकलना उसको एनालाइज करना पड़ेगा। जब ओवर वैल्यूड है तो उससे निकलना पड़ेगा। जब अंडर वैल्यूड है तो वहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने रियल एस्टेट का। हमने 2021 के अंदर हमने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए काफ़ी। वहाँ हमारा बना 300% रिटर्न, 300% रिटर्न इन लास्ट 4-5 years और इवन 4-5-6 years, राइट। उसी टाइम पे मैंने अहमदाबाद में इन्वेस्टमेंट किया, वन ऑफ द लीडिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ अहमदाबाद। और उसी सेम पीरियड में पिछले 10 साल, नॉट सेम पीरियड, वो मैंने किया था 2014 के अंदर। वहाँ मेरा मात्र रिटर्न बना 50%। 10 साल में 50%, विच इज अ कैगर ऑफ लेस देन 3.5%। एंड नोएडा के अंदर द कैगर, I'll even find it difficult to calculate quickly, 300% in last 6 years. Yes. सो एसेट क्लास डिफर करती है। अगर मैंने स्विच टाइमली किया होता अहमदाबाद से नोएडा के अंदर, तो मेरा जो पैसा स्टकअप था वो भी आज मेरा पैसा बन जाता। बट आई थिंक ठीक है, दीज ऑल वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। सो आई थिंक अगर आपको बाय करके भूलना है, मैं भी बाय करके अहमदाबाद में भूल गया था, गलती हो गई, मैंने स्विच टाइमली नहीं किया दैट वे। एंड नोएडा भी मुझे लगता है कि अब बहुत फेयरली वैल्यूड है, तो हो सकता है मैं बहुत जल्दी स्विच टाइमली कर भी लूँ वहाँ से, राइट। सो इट्स ऑल ऑप्शंस, आपको स्विच टाइमली देखना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा। तो अभी तक आपने बताया ना राइट नाउ कि 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड वाला प्रिंसिपल। तो अगर आप देखोगे ना कहीं ना इट फिट्स विथ मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। अभी मतलब हम जिस इन्वेस्टर को देखते हैं ना, बड़े इन्वेस्टर्स को देखते हैं कि दे बॉट अ स्टॉक, दे फॉरगॉट इट एंड लॉन्ग रन में पैसा बना। तो उनके पोर्टफोलियो में अकेला स्टॉक नहीं था ना, उनके पोर्टफोलियो में मतलब 20-30-40 स्टॉक्स होंगे। उसमें से जो नहीं चले आपके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब जो नहीं चले, जहाँ पर डाउन ट्रेंड आया, कुछ भी आया, उसको उन्होंने बेच दिया, और जो चल रहे थे, जो ट्रेंड में थे, दे हेल्ड, मतलब वो ट्रेंड लंबा चला एंड दे मेड मल्टीबैगर रिटर्न्स देयर, राइट। यू आर राइट ऑनेस्टली। सो अगर उन्हें 40 स्टॉक थे, सो 2 चलते हैं जो मीडिया में आ जाते हैं, पर जो 38 नहीं चले उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एंड बिकॉज मीडिया के लिए वो हेडलाइन नहीं है। सो ऑनेस्टली इसको हम हाउ वी टेक इट इन अवर फैमिली और इन अवर स्ट्रक्चर इज, हम स्टॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है ईगो बूस्टर स्टॉक, ओके, जो आपकी ईगो को बूस्ट करते हैं कि भाई मैंने ये स्टॉक लिया था। आप शादी में जाओगे, पार्टी में जाओगे, दोस्तों का नाइट आउट पे जाओगे, फन करोगे, एंड से बॉस लिया था भाई, देखिए स्टॉक दुगना हो गया विद इन अ ईयर, एंड विल से विद लॉट ऑफ प्राइड, ठीक है। बट ऐसे मेरे भी दोस्त हैं बहुत सारे, तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई अगर मान लेते हैं 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तूने इस स्टॉक में जिसमें डबल हुआ कितना पैसा लगाया था 100 करोड़ में से? कह रहे यार मैं लगाया तो 50 लाख ही था यार। अब आप समझ रहे हो, अंडरस्टूड। 50 लाख का आपने 1 करोड़ कर लिया, कितना प्रॉफिट रहा आपका? 50 लाख का। पर आपका पोर्टफोलियो कितना था? 100 करोड़ का। आपके पोर्टफोलियो पे रिटर्न कितना आया? 0.5%। यस, राइट। तो ये ईगो बूस्टर स्टॉक है, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, एज अ फंड मैनेजर ऑल्सो, कि आप 50 के 50 स्टॉक ऐसे चूज करो जो सारे एक बार में चल जाए। क्योंकि आप जब आप किसी भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात करते हो आप, तो आप डिफरेंट थीम्स बाय करते हो, डिफरेंट सेक्टर्स बाय करते हो,
डिफरेंट अंडरलाइंग स्टॉक्स बाय करते हो। करेक्ट। और मार्केट में क्या होता है, कभी थीम्स चलते हैं, कभी एकदम में PSU थीम आ जाएगा, जो आज से 2 साल पहले आपने देखा था। फर्टिलाइजर स्टॉक लाइफ टाइम हाई, रेलवे स्टॉक लाइट, आज तो रेलवे स्टॉक की कोई बात ही नहीं कर रहा। नो वन इज टॉकिंग अबाउट IRCTC। यस राइट। सो थीम्स आते हैं, कभी फर्टिलाइजर स्टॉक चलेंगे, कभी रेलवे स्टॉक चलेंगे, कभी PSU चल जाएंगे, कभी न्यू एज प्लेटफॉर्म चल जाएंगे, और कभी वो एकदम में डल आ जाएंगे, कभी EMS वाले स्टॉक चल जाएंगे। राइट, थीम्स आते हैं। तो सारे थीम एक बार नहीं चलते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो 50 स्टॉक का है, ठीक है, तो 50 में से मान लीजिए आपके 2-3 थीम चल गए जिसके बारे में आपने बात करी, और जो आपके 7-8 थीम नहीं चले उनका क्या हुआ? करेक्ट। उनमें 50 स्टॉक थे। तो जनरली ये जो ईगो बूस्टर स्टॉक है, ये केवल आपकी ईगो बूस्ट करते हैं, बट आप इसमें पूरी तरीके से पैसा एलोकेट नहीं कर पाते हो। ये चैलेंज है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काम है, 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं स्टॉक में पैसे बनाऊं, जो शायद आसान है, पर मुश्किल क्या है, ओवरऑल पोर्टफोलियो पे पैसे बनाना, पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बनने चाहिए। अब 40 स्टॉक में अगर आपने हर एक में 2-2% लगाया है, या 3-3% भी लगाया है, 2 और 2.5% लगाया है, 20 स्टॉक एक साल बाद वही होंगे, जो शायद मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर आज कैन कनेक्ट कि वो स्टॉक या तो 20% डाउन है या उसी भाव के आसपास घूम रहे हैं। करेक्ट। 40 में से 20 वही हैं, 5 ऊपर गए, जो 5 में से 2 डबल हो गए, जिसके बारे में आपने मीडिया में बात कर दिया राइट। अब 20 वही हैं, 20 डाउन है, और 10 ऊपर है, 10 में से 2 डबल हो गए, बस पोर्टफोलियो रिटर्न तो बना ही ना आपके। यस, एब्सोल्युटली। राइट। ये है पहली अप्रोच, जिस अप्रोच से हम एग्री नहीं करते हैं। एज ए न्यू एज इन्वेस्टर हम नई फिलॉसफी फॉलो करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि निफ्टी 200 के अंदर कौन से स्टॉक मिस प्राइस्ड हैं, हम उनमें इन्वेस्ट करें, और उन मिस प्राइस स्टॉक की जर्नी पूरी करें जब तक वो फुल्ली प्राइस्ड ना हो जाए। से एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा आप मीडिया चैनल देखेंगे हमारा आप, तो आपको लिखेगा हम HDFC बैंक में वी वर एक्सट्रीमली वोकल टू बाय एट 1400 एंड वी कॉल इट इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। अगर मेरा 100 करोड़ का पोर्टफोलियो भी है, कब बताया था आपने इसको? ये है हमारा आई थिंक दिसंबर 2023। ओके। जब स्मॉल कैप माइक्रो कैप में रैली आई थी दिसंबर 2023 के अंदर, हमने कहा माइक्रो कैप से निकल रहे हैं। सब गाली दे रहे थे HDFC को उस टाइम। You're right, you're bang on, you got it. दिसंबर 2023 हमने कहा हम स्मॉल कैप माइक्रो कैप से निकल रहे हैं, और ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप गूगल सर्च करेंगे आपकी टीम तो मिल जाएगा। हम स्मॉल कैप माइक्रो कैप से निकल रहे हैं, एंड वी आर पुटिंग ऑल मनी इनटू HDFC बैंक एंड कोटक बैंक ऑफ द वर्ल्ड। तब शायद HDFC बैंक का भाव 1400 रुपया था तब। ये पास से तो मैं आज बात कर सकता हूँ, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ रेगुलेशन वेयर वी कैन नॉट टॉक अबाउट द स्टॉक, पर ये पास से तो आई कैन टॉक अबाउट। तो HDFC बैंक 1400 रुपया और कोटक बैंक 1700 रुपया। अब तब से लेके ये दोनों स्टॉक लगभग 30% ऊपर है। तो हमने पहले माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में जो रन था वो आया, उसके बाद हमें लगा कि ये स्टॉक मिस प्राइस, हमने इनमें इन्वेस्ट किया, और ये ऐसे स्टॉक है जहां हम 100 करोड़ रुपए डाल सकते हैं। हमें 40 स्टॉक नहीं चाहिए 100 करोड़ डालने के लिए, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो दैट्स हाउ वी डिफर पोर्टफोलियो स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक विद इन निफ्टी 200 वर्सेस ईगो बूस्टर स्टॉक, जहां पोर्टफोलियो रिटर्न बनाना, ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न बनाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी के लिए भी। सो वी जनरली प्रेफर कि 7-8 पोर्टफोलियो स्टॉक्स हो जाएं वर्सेस 40 या 50 ईगो बूस्टर स्टॉक की बजाय। ये हमें बहुत पीस देंगे, कंफर्ट देंगे, और हमें एवरेजिंग में हेल्प करेंगे। अगर 40 स्टॉक का या 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो, तो कहाँ आप एवरेज करोगे? बिकॉज मनी तो लिमिटेड है, मनी तो लिमिटेड है ना, ये अनलिमिटेड मनी है। लिमिटेड मनी, आप किस किस में कितना एवरेज करोगे आप? इट्स बेटर यू फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यू इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप ये ईगो बूस्टर पोर्टफोलियो से काफी बेहतर करेंगे इन द लॉन्गर रन विद लॉट ऑफ पीस इन द माइंड। ठीक है, अभी आपने निफ्टी 200 के बारे में बताया ना। हाँ, यू ट्राई टू पिक स्टॉक्स विद इन निफ्टी 200 व्हिच आर मिस प्राइस हमारे हिसाब से। व्हाई नॉट निफ्टी 500? मतलब निफ्टी 200 के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? बिकॉज वहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ओके। और हमारे अमाउंट जनरली एज अ फैमिली ऑफिस एंड ऑल दैट, इन अ सर्कल, फ्रेंड्स एंड एवरीवन, फैमिली अराउंड, द अमाउंट्स आर ऑलवेज लार्जर। अगर हम 100 करोड़ के पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, मिनिमम टिकट साइज 100, तो फिर वहां आपको लिक्विडिटी बहुत चाहिए। और ऐसी भगवान ऐसे मतलब मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है। सो HDFC 1400 पे मिस प्राइस था, और रिसेंटली रिलायंस 1100 पे मिस प्राइस था, लेकिन अब 1500 आ गया है, राइट। तो आपको स्विच टाइमली भी आइडिया, मैं HDFC में बैठा रहता तो फायदा नहीं था। इट्स बेटर टू स्विच फ्रॉम HDFC टू रिलायंस। दैट्स हाउ स्मार्ट इन्वेस्टर मूव मनी and make money by this 9th wonder of the world called invest rightly, switch timely within Nifty 200. Okay. तो अभी आपने एक और प्रेडिक्शन किया था अर्ली 2025 में, जब सब बोल रहे थे निफ्टी 27,000 हिट करेगा, बियॉन्ड 30,000 जाएगा, उस टाइम था ना, टेम्पररी फॉल है, तो उस टाइम आपने कॉशन दिया था। तो उस टाइम आपको मार्केट में ऐसा क्या नजर आया, बिकॉज ऑफ विच यू सॉ कॉशन इन द मार्केट,
एंड उसके बाद अभी के मार्केट में क्या फिर से आप मतलब अदर देन जियोपॉलिटिक्स इंटरनली विद इन इंडियन मार्केट्स आप कुछ कॉशंस देखते हैं क्या? सो ऑनेस्टली ये जो इंटरव्यू मैंने रिपीट किया था मार्च के अंदर अपना कॉशियस व्यू का, जब मुझे मीडिया CNBC जो भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म था जहाँ मुझसे पूछा था, हमारा एग्जिट पॉइंट तो 8 सितंबर, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 8 सितंबर 2024 था, जो हमने मीडिया इंटरेक्शन किया था मनी कंट्रोल के साथ कि भैया हमें लगता है मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, हमें नहीं लगता निफ्टी 27,000 जाएगा, हमें नहीं लगता निफ्टी 30,000 जाएगा, जो लोकसभा के चैनल्स पे बात कर रहे थे. वी हैड अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट व्यू एंड वी वर हैप्पी बाय बुकिंग द प्रॉफिट्स एंड वी वर राइट दैट वे. सो हमें लगता है कि ये उस वक्त का एग्जिट पॉइंट था. हमें लगता है हम अभी भी, जैसा मैंने कहा अपने लास्ट आंसर्स के अंदर, हम अभी भी एक्यूमुलेट करेंगे, हम आउटराइट बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट तो फेयरली वैल्यूड है. बट अगर यूएस में किसी भी एसेट क्लास में क्रैश आता है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज हो या प्राइवेट इक्विटी का एक बबल हो या क्रिप्टो का बबल हो या AI का बबल हो या नेस्डैक का बबल हो, जब भी वो क्रैश आएगा उसका रब ऑफ इफेक्ट इंडिया पे भी आएगा. तो अगर मैंने आज बाय करके बैठ गया तो मेरे पे एवरेज करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे. तो मैं स्लोली इसको बाय करूंगा इन नेक्स्ट 6 months. सो आई विल डू एन स्टॉक SIP where I try to find out at every month I invest into a stock, a quality stock, a portfolio stock, not a ego booster stock, and probably wait for next 3 years to get a right price. Okay. तो अभी आपने तमाम फैक्टर्स बताए ना, यूएस में क्रिप्टो बबल हो सकता है, क्रिप्टो वैल्यूएशन पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है. ऑलरेडी वो अभी 28% नीचे गिर चुका अपने पीक से. हमने तो पहले लिखा था ये. अब 28% गिरने के बाद मुझे लगता है शायद और गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि वो एसेट क्लास में मेरा बिलीफ पर्सनली बहुत कम है. और लोगों ने बहुत पैसा कमाया होगा उसके अंदर, यूएस के अंदर कमाया. इंडिया में तो काफी लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. बट स्टिल आई थिंक वो बहुत रिस्की एसेट क्लास है फॉर द वर्ल्ड. बट नेक्स्ट 5 years में वी कैन कंसिडर दीज आर द रिस्क फैक्टर्स. अगर मैनिफेस्ट होंगे तो 100% क्रैश हो सकता है. So यही शायद आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2.0 लेके आएंगे जब भी आएंगे. अच्छा, ओके. एंड अभी ना आपने बहुत सारे एसेट क्लासेस के बारे में हमने बात किया, बट एक एसेट क्लास के बारे में स्पेसिफिकली हमने बात नहीं किया, एंड दैट इज गोल्ड, राइट? तो अभी गोल्ड के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, इन्वेस्टमेंट व्यू? देखिए भरत भाई, सबसे पहले मैं बताऊं, गोल्ड में हमारे, अगर आप आज गूगल सर्च करते हैं और लिखते हैं गोल्ड इज नेक्स्ट बजूका, तो आपको पूरी दुनिया में केवल एक आर्टिकल आएगा अमित जैन के नाम पे. ओके. अमित जैन, आशिका ग्लोबल फैमिली ऑफिस. ओके. और ये हमने दिया था 7 जुलाई 2020 को कि गोल्ड नेक्स्ट बजूका है. नहीं, 1 minute, you 7 जुलाई? No, you said it in 2020. जब गोल्ड का भाव $1,400 अनाउंस था. ओके. और अभी मैंने CNBC TV 18 को एक इंटरव्यू दिया था जब गोल्ड का भाव शायद $4,400 अनाउंस था. ओके. हमने कहा वी आर ईदर एग्जिटिंग और रिड्यूसिंग अवर वेट फ्रॉम 20% to 5%. सो हमारा एंट्री पॉइंट क्या था? $1,400 एन आउंस, लगभग 32,000 रुपए के आसपास. और हमारी एग्जिट पॉइंट लगभग जो रहा मीडिया इंट्रैक्शन के हिसाब से वो रहा 1,32,000 का. तो जब आपका 4 गुना पैसा बन जाए तो आपको आराम करना चाहिए. हर बार पैसा स्विच टाइमली. ओके. तो इट्स बेटर दैट यू ईदर रिड्यूस योर एलोकेशन इन द गोल्ड नाउ, at least from a 1 year perspective, right? Or sit on cash and start accumulating the quality Indian stocks. Okay. So gold, we have been bullish when no one was talking about it in 2020. Okay. And now we were cautious when everyone was bullish on $4,400 an ounce. Okay. So we again took a contra bet here. So as of now, we are cautious on gold. The mostly you will find a 10-15% rally here and there. You will not see 70% return on gold, what you have seen in 2025. That's gone. Okay. So sir, point to exit. Remember the Chandni Chowk of Delhi and Nariman Point of Mumbai. It will have more price correction and time correction in some way. But after 1 year, gold rally will again start, because some point of time we believe that world will move away from fiat currency system and will go back to the gold backed currencies the way we used to have before 1971. Okay. So it's a temporary pause. So that's why I said cautious. I'm not bearish on gold. Okay. We are cautious temporarily. But it can change with the changing geopolitics. Yes. If there's a war tomorrow, gold will shoot to $6,000 an ounce. Don't be surprised with this. Yes. But that's the only asset class which people have been believing for last 2,000 years. Correct. Forget about fiat currency system, which is not in existence for last 70 years even. Last 80 years, 1971 till today. Correct. Right? Gold is in
is a belief for last 2000 years, right? So if any war or geopolitical risk come, gold will shoot again. But given the geopolitical risk is settled, gold will have a more time correction and to some extent price correction. अभी मतलब गोल्ड में डिमांड इसलिए आ रहा है ना बिकॉज पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर. Yeah, absolutely right. Because people are disbelieving the fiat currency system and moving in from the dollar. Okay. Because I don't know how much you have studied the US, but if you see the debt cloth of US, US एक ऐसा स्टॉक है जिसका जो सेल्स है वो है 40 रुपया, which is GDP नंबर लगभग. उसका डेट है 240 रुपया. सेल्स का भी 6 टाइम्स. अगर उसकी अनफंडेड लाइबिलिटी को आप काउंट करते हैं तो अनफंडेड लाइबिलिटी को भी नॉट ओनली जो आप देखते हैं मीडिया में वो तो आपको $40 ट्रिलियन बताते हैं, ग्लोबल डेट, लोकल डेट, कंट्रीज का डेट. अनफंडेड लाइबिलिटी आप जाके देखें तो $240 ट्रिलियन की है लगभग. तो सेल्स कितनी हुई जीडीपी नंबर 40 रुपया, डेट हुआ 240 का. अब आप पूछोगे भाई सेल्स है तो प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट तो है ही नहीं बिकॉज फिस्कल डेफिसिट और करंट डेफिसिट में है. तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं, जहाँ पे सेल्स तो 40 रुपया, डेट है 240 रुपया और प्रॉफिट है ही नहीं. तो यही रीजन है कि वर्ल्ड इज मूविंग बैक टू द गोल्ड एंड मोस्ट ऑफ द गोल्ड रैली in last 2-3 years has come because of the central bank buying. You must be reading these headlines, but we were the first one to preempt it in 2020 when world was saving their life from the COVID-19 virus, and I had given that media article. Okay. We were bold enough to give it that time. That gold is next bazooka. Okay. But gold में ना एक conflict है gold में right now. I don't know whether this conflict, how serious is this conflict. वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि एक यूएस का कंपनी बोलता है कि बट बिफोर दैट जब आर्टिफिशियल डायमंड्स थे ना, जब वो मार्केट में आने शुरू हुए थे तब लग रहा था कि यार कुछ नहीं होगा इससे. बट राइट नाउ इफ यू सी डायमंड का जो प्राइस है आफ्टर आर्टिफिशियल डायमंड स्टार्टेड कमिंग टू द मार्केट वो 30-40% क्रैश हो गया है. सो अभी एक यूएस कंपनी बोलता है कि दे आर एबल टू मेक गोल्ड विथ न्यूक्लियर फ्यूजन, मर्क्यूरी से गोल्ड बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं. तो अगर ये भी अगर मैनिफेस्ट होता है तो क्या गोल्ड का प्राइस भी डायमंड की तरह 30-40% क्रैश हो सकता है? आई थिंक ये एक बहुत लंबे समय का फिनोमेना है. अगर ऐसा होगा तो कोई गोल्ड जो है, डायमंड कभी भी एक्सचेंज वैल्यू में नहीं. बार्टर सिस्टम में आपने कभी डायमंड सुना था पुराने टाइम में? नहीं. पर गोल्ड तो सुना होगा. यस. गोल्ड एक अलग लीग है, अलग चीज़ है, अलग विश्वास है. और ये जितना भी प्रोड्यूस, कितने न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे ये लोग दुनिया के अंदर सो दैट पूरे सेंट्रल बैंक जो बाय करना चाहते हैं गोल्ड उतना बाय कर सके. Okay. ये एक लिमिटेड सप्लाई है. इट इज गुड फॉर मीडिया हेडलाइंस, बट इसकी वजह से गोल्ड पे इम्पैक्ट आना आने वाले 5 साल तक तो मुझे बहुत नामुमकिन लगता है, आने वाले 5 साल के हिसाब से. बट डिपेंडिंग हाउ दिस डेवलप, बिकॉज टेक्नोलॉजी है, चेंज ओवरनाइट. टेक्नोलॉजी समय के साथ बेहतर ही होती है, राइट? तो मुझे लगता है कि इसके लिए अभी लंबा समय है. इस कारण की वजह से गोल्ड में क्रैश नहीं आएगा आने वाले 5 साल तक. हाँ, और बाकी बहुत सारे रीजंस होते हैं जैसे हमने बात करी. इसकी वजह से तो अभी नहीं क्रैश आना चाहिए. एंड आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हो? एंड अगर ऐसा है तो राइट नाउ पहले तो मतलब ब्रिक्स में बन गया पैसा, ब्रिक कंट्रीज में, अभी कहाँ बनेगा नेक्स्ट? देखिए, गोल्डमैन सैक ने ये टर्म निकाली थी ब्रिक्स इन ईयर 2000 रफ 2002, 3 व्हाटएवर, आई डोंट रिमेंबर द डेट, व्हिच इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. इन ब्रिक्स में भी सिर्फ इंडिया ने पैसा बनाया है, और इंडिया के बाद पैसा बनाया है चाइना ने. ब्राजील और रशिया में तो पैसा लोगों का बना नहीं है. ये मैं आपको पिछले 20 साल की स्टोरी दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक्रोनियम अच्छा था, बट पैसा तो केवल इंडिया और चाइना में बना. ये ब्रिक्स. अब आता है जो हम बोलते हैं आशिका ग्लोबल फैमिली ऑफिस सर्विस के अंदर, हम बोलते हैं भाई 2000 से 2025 तो ब्रिक्स चला, और अब लोग पूछते हैं कि 2025 से 2050 तक क्या चलेगा. तो हमारा ऐसा मानना है द टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू मूव फ्रॉम ब्रिक्स टू विपेक. व्हाट इज विपेक? So WIPEC is also acronym for the countries where we call the country like Vietnam, Indonesia, Philippines, India and China. So these 5 countries will make maximum money in next 25 years for the people because of the demographic dividend we talked about, the demand, and at least in India democratic setup and the saving culture. So WIPEC is mostly Southeast Asian countries you will find out where saving is still persist. The Filipinos still go to US and across the world and save money and save back to their country the way the Indians do. Yes. We are the highest inward remittances across the world, close to $120 billion every year. You even don't think of an FII. What Indians overseas send back money to their home country.
The same as Philippines and all these countries. So they still have a saving culture. So combination of demographic savings will take these countries to a next level by 2050. So the world has to move from BRICS to WIPEC. ओके, मतलब ऐसे कंट्रीज जहाँ पर फिजूल के खर्चे नहीं करते, सेविंग करते हैं, सेविंग करते हैं. They don't live on EMI and they still earn for themselves. Not their government give them unemployment allowances. एब्सोल्युटली. एंड अभी ना थोड़ा सा गोल्ड के बाद इसके बाद थोड़े रिटेल इन्वेस्टर्स के जो हॉट क्वेश्चन है उसके बारे में भी बात करते हैं. तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ना कि मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, करेक्ट, और मिड कैप वीएम से. तो अभी आपका नियर टर्म व्यू स्मॉल कैप मिड कैप इस पे क्या लगता है? बिकॉज ऑलरेडी दे हैव बीन लाइक बीटन अप अ लॉट. I think and the small cap stocks individual, forget about index, but the stocks are beaten by 20% to 40%, even to 50-60% in some cases. I think is the last leg of small cap correction. Then the last leg of bear run. As soon as we see the broader stock market on those bubbles which you're talking about in the US get burst, I think that will be the rock bottom of the small cap in India. अच्छा, And that will be the time when you can again get into small cap and make money, make next multi-baggers for next 5 years. okay. Just wait for the right entry point in those small caps. However, you can be very specific on the companies because market में आपको trend पकड़ना बहुत ज़रूरी है. और trend क्या होता है? Trend ये होता है कि अगर market में trend अच्छा है और आपकी कंपनी का मार्केट कैप है 500 करोड़ और आपको सिर्फ 50 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो आपका स्टॉक जो है 100 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ जाएगा. आपको 50 करोड़ का ऑर्डर मिला है जिसका एग्जीक्यूशन 2 साल में होगा, जिसका एग्जीक्यूशन 2 साल में होगा, बट मार्केट कैप आपका 100 करोड़ या 50 करोड़ से बढ़ जाएगा उसी दिन जिस दिन ऑर्डर आएगा. दिस इज कॉल्ड बुल मार्केट ट्रेंड. व्हेन मार्केट डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लोज इमीडिएटली, 2 साल बाद भी जो कैश फ्लो आएगा वो आज ही आपके वैल्यूएशन में आ जाएगा. ये है बुल ट्रेंड. दूसरा होता है बेयर ट्रेंड, कि आज की मार्केट में जो बेयर ट्रेंड है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, आप अगर बोलो कि मेरा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी प्रॉफिट में 20% है तो भी स्टॉक 5% नीचे मिलता है आपको नेक्स्ट डे. क्यों? इट्स नॉट कि उसकी परफॉर्मेंस खराब है, इट्स वक्त मार्केट खराब है. ओके. सो फॉर रिटेल इन्वेस्टर द बेस्ट टाइम टू बाय अ स्टॉक इज व्हेन स्टॉक इज गुड, कंपनी इज गुड, बट मार्केट इज बैड. Okay. Because you're getting a fair valuation of the stock. That's the best time to buy. मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छी खबर में भी रिएक्ट नहीं कर रहा है स्टॉक. हाँ, और खराब बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, वो बेस्ट टाइम है. कोई कहीं ना कहीं तो वो खबर अच्छी पीएनएल में दिखेगी ना आगे जाके. तो उस मार्केट मोमेंटम फेवर नहीं कर रहा है, बस स्टॉक की परफॉर्मेंस तो अच्छी चल रही है ना. तो इट्स बेटर दैट यू बाय गुड स्टॉक इन द बैड मार्केट. Okay. You buy good stock in the bad market. That's the best entry point for you. Okay. और हमने एक और बात डिस्कस किया था ना कि जस्ट बिकॉज निफ्टी इज गोइंग अप कि अपना पोर्टफोलियो भी ग्रीन में जाए. नहीं होता. मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिटिंग ऑन रेड पोर्टफोलियो राइट नाउ. So that's the biggest myth any investor in India can have. Trust me, quote me on this. Yes. And they all are seeing today after a year निफ्टी तो वही है लाइफ टाइम हाई के आसपास, बट पोर्टफोलियो आर बीटिंग फ्रॉम 15% to 20% to 10% to 40% whosoever invested anywhere else. Yes. Apart from Nifty stocks. Absolutely. तो अभी जो रेड पोर्टफोलियो पे बैठे हैं ना, उसमें से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मुझे एवरेज डाउन करना चाहिए किसी स्टॉक में, या पोर्टफोलियो रीजिक करना चाहिए, तो या एग्जिट करना चाहिए किसी स्टॉक में, किसी को होल्ड करना चाहिए. तो कैसे वो अपने पोर्टफोलियो को फिर से रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं? देखिए, पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर तो कर सकते हैं. एवरेजिंग के 2 तरीके होते हैं. या तो जो आपने स्टॉक 100 रुपए पे लिया, अब वो 70 रुपए आ गया है. Yes. पर ये जरूरी नहीं कि 70 वाला स्टॉक दोबारा 100 जाएगा. आपको एक तो ये निकालना पड़ेगा. तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा व्हाई डिड यू बाय दिस स्टॉक इन द फर्स्ट गो. ओके. अगर वो रीजन और वो ग्रोथ स्टोरी अभी भी अलाइव है और कंपनी के पीएनएल में दिक्कत नहीं आ रही है, कंपनी की बैलेंस शीट रोबस्ट है, बट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, इट इज ओनली 100 का स्टॉक 70 पे आ गया क्योंकि मार्केट खराब है, क्योंकि मार्केट खराब है, स्टॉक खराब नहीं है, तो आपको एवरेज करना चाहिए. ओके. बट अगर मार्केट ओके है पर स्टॉक की परफॉर्मेंस खराब है, तो आपको लॉस बुक करके कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक की परफॉर्मेंस खराब होना इज अ बिग चैलेंज. ठीक है. एक तो ये एवरेजिंग का तरीका कि आप 100 वाला चीज 70 में ले या 60 में ले, जब आए एक एवरेज कर लें, नंबर 1. दूसरा, अगर स्टॉक अच्छा है पर मार्केट क्लियर का ट्रेंड नहीं दे रहा है आपको, देन यू शुड एवरेज आउट इन 2 ways. 1, प्राइस में एवरेज हो जाए,
और आपके टाइम जोन में एवरेज हो जाए Yes. कि भैया अभी तो स्टॉक फटाफट 20% गिर गया, मैंने ले लिया, हम्म, पर लेकिन अगर मार्केट अच्छा नहीं है तो 20% से ज़्यादा और गिर सकता है। हम्म, तो आप ये कसम खा लो कि भैया मैं 40% नीचे लूंगा इसको एवरेज। कोई स्टॉक के फंडामेंटल चेंज नहीं हुए हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज तभी करना है जब स्टॉक के फंडामेंटल चेंज नहीं हुए, मार्केट खराब है। ये पहला कैवेट है। Yes. अगर ये कैवेट पूरा हो रहा है तो स्टॉक 30-40 का गिर गया, गुड, मैं ले लूंगा क्योंकि उसका पेंडल तो नहीं गिरा है, ठीक मैं है। एवरेज करूंगा, पर 6 महीने के अंदर धीरे धीरे करूंगा, एक बार में नहीं करूंगा, एक प्राइस पॉइंट पे नहीं करूंगा, धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। एंड वो काफी गट फील पे डिपेंड करता है, आपको खुद, जिसने आपको वो एडवाइस किया था स्टॉक, आई एम नो वन टू एडवाइज इट, जिसने आपको वो स्टॉक एडवाइस किया था आप उससे पूछो, rather than I can give an answer on this podcast कि भाई 40% गिर गया अब क्या करूं। तो आपको एवरेज करने का तरीका एक तो प्राइस पॉइंट, और एक है आप 6 महीने का आप गैप दे दो, क्योंकि आप बहुत जल्दी एवरेज करोगे। मान लो आपको स्टॉक में 5 लाख रुपए लगाने थे, 5 लाख में आपने 3 लाख रुपए पहले दिन लगा दिए, आपको लग रहा था ये तेजी होगी, वो स्टॉक गिर गया 30%, आपने 2 लाख रुपए और लगा दिए, पर वो 2 लाख रुपए आपने लगा दिए, पर उसके बाद स्टॉक में तो आपने एवरेज कर लिया, आपने पूरा 5 लाख रुपए उसमें अपना लगा दिया, पर मार्केट अभी भी खराब है क्योंकि यूएस का मार्केट गिरा नहीं, और यूएस गिरेगा तो फिर इसको और गिरना पड़ेगा। करेक्ट। तो फिर आप एवरेज के लिए पैसे कैसे लेके आओगे? यस। तो इट्स बेटर आप स्टॉक को प्राइस में भी एवरेज करो और टाइम जोन में भी एवरेज करो, क्योंकि मैं 6 महीने बाद ही एवरेज करूंगा, 6 महीने बाद ही एवरेज करूंगा, 6 महीने जो यूएस में होना होगा हो जाएगा ना। यस। एंड देन आई हैव अ क्लियर कट ट्रेंड फॉर द स्टॉक। ओके। तो आपको एवरेज दो तरीके से करना चाहिए, प्राइस में भी और टाइमलाइंस में भी। एंड आल्सो एसेट एलोकेशन के बारे में एक क्वेश्चन। तो अभी आपने बोला ना कि मिस प्राइस पे अगर कोई एसेट मिलता है तो खरीदना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा है कि मतलब अगर कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास मिस प्राइस पे मिल रहा है तो सारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं तो गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट, ऐसे अलग अलग चीजों में अलग अलग थोड़ा एलोकेशन बहुत रखना है। डायनामिक चीज होती है भैया, इसका कोई स्टेट आंसर नहीं हो सकता। ओके। इट यू हैव टू गो बाय गट फील। ओके। इसलिए बहुत मुश्किल है किसी के लिए आंसर, एक जेनरिक आंसर देना जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो। एब्सोल्युटली। हाँ, राइट। सो जनरली मेरे को लगता है अगर आपका कन्विक्शन बहुत अच्छा है और एसेट हार्ड है तो आप ज्यादा भी एलोकेट कर लो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो बहुत हार्ड एसेट नहीं होते हैं। रियल एस्टेट इज एन हार्ड एसेट, और वहाँ आपको एक प्राइस करेक्शन मिल रहा है और टाइम करेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप एवरेज आउट आसानी से कर सकते हो। ओके। स्टॉक्स में अगर कंपनी के फंडामेंटल और पी एंड और बैलेंस शीट ही चेंज हो गई तो आपके एवरेज से भी फायदा, अल्टीमेटली यू विल लूज इट लाइक व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द यूनिटेक एंड द जेपीसी ऑफ द वर्ल्ड इन द ओल्डर डेज। यस। राइट। आज जेपी एसोसिएट का स्टॉक डाउन है, पर जो उसके फ्लैट है वो तो आज भी 3 गुना रेट पे चल रहे हैं। वो हार्ड एसेट था। यस। ओके। So it is very dynamic to have it. Absolutely. And also अगर अभी आप asset allocation में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो do you consider passive investing options जैसे कि ETFs वगैरह? ETF yes, but actively. अच्छा, passive. Because आपको पता है हमारी philosophy तो एक ही है, invest right, new age philosophy, invest rightly, Okay. switch timely. Timely. So हमें लगता है जो ETF जब सस्ता मिल रहा है हम तब ले लेते हैं। जैसे हमें बैंकिंग स्टॉक के ETF सस्ते लग रहे थे, जो हमने ये फार्मा बोला था, हमने बैंकिंग स्टॉक के ETF लिए। हमें जब PSU के ETF सस्ते लग रहे थे हमने 15-16 मार्च को PSU के ETF लिए, एंड आई थिंक वो उस भाव से अभी 16-18% ऊपर है। अगर आपने 3-4 महीने में 18% बनाया है, आपको क्यों इन्वेस्ट रहना है किसी भी स्कीम में, किसी भी अदर एसेट क्लास में, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर, या 18% आप शॉर्ट टर्म में बना रहे हो आप थ्रू ETF। कोई ETF में तो फायदा है, इट इज नॉट अ सिंगल स्टॉक, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स। यस। ठीक है, तो हम ETF में पैसिव ETF में इन्वेस्ट करते हैं बट एक्टिवली करते हैं। वी एक्टिवली चर्न। ओके। Where we see undervaluation, we will buy. Where we see a fair valuation to overvaluation, we'll sell. Okay. तो ETF और इंडेक्स फंड में यू डिफरेंशिएट, और मतलब दोनों आपके लिए I think same है लगभग, and ETF is must cheaper to you. का कॉस्ट लगभग 10 से 20 पैसे रहता है। इंडेक्स फंड में भी आपको 50-60 पैसे का कॉस्ट आता है। So ETF are far better compared to index funds. Okay. And if you're picking ETFs, how do you pick ETFs? I think ETF, we see that asset class and underlying stocks. If we are comfortable with the valuation of underlying stock of the ETF, we'll buy. If we don't like it's all about valuation. Anything in stock market, I repeat, is about the valuation.
क्योंकि ना ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इसलिए पूछा बिकॉज जनरल रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में है ना कि अगर ETF है तो चलो ETF खरीद लेते हैं, निफ्टी का ETF जो भी, बट अभी आपने क्लियरली बताया ना कि अंडरलाइंग एसेट पे बेट करने के लिए ETF यूज करना चाहिए। 100% अनलाइन Yes. वैल्यूएशन अगर मुझे अच्छा सस्ता लग रहा है तो मुझे लगना है। Yes. से फॉर एग्जांपल प्रिज्यूमेबली अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको बोलता हूँ, हमने पहले बैंक ETF बोला था, वो तब अंडर वैल्यूड था, आज वो 18% ऊपर है। ओके। आज अगर मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, मेरे पे और कैपिटल नहीं है लगाने के लिए, तो शायद मैं वो बैंक ETF को आज IT ETF में शिफ्ट कर लूंगा, शायद, नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ, लेकिन अगर कैपिटल है तो मैं फ्रेश लगाऊंगा IT में, क्योंकि मैं बैंकिंग पे अभी भी बुलिश हूँ, बट मैं रिलेटिवली अब IT पे ज्यादा बुलिश हूँ बिकॉज मुझे वहाँ वैल्यूएशन अच्छा मिल रहा है। एंड अगेन द पर्सपेक्टिव इज नेक्स्ट 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव। ओके। एंड वन फाइनल क्वेश्चन, तो अभी ना आप अज्यूम कीजिए कि राइट नाउ अभी आपके पास जो भी नॉलेज है वो सब कुछ आपके पास है, बट द थिंग इज दैट यू आर 22 years old and of course you look 22 years old but assume that अगर आप 22 years old हाँ है, जी, आपके पास अभी जो नॉलेज है 22 years old आपके पास है और आपके पास 5 लाख रुपए हाँ। राइट नाउ, तो इस 5 लाख रुपए को ग्रो करने के लिए आगे मतलब इफ यू वांट टू ग्रो इट टू 50 लाख और 1 crore, व्हाट इज द अप्रोच यू वुड टेक राइट नाउ? भरत भाई देखिए 22 ईयर एज तो मैंने मान लिया आपका, पर 5 लाख में मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। 50 लाख कर लेंगे आसानी के लिए, कर लीजिए 50 लाख थोड़ा मेरे को आसानी रहेगी, Yes, दिमाग yes, में yes. थोड़ा एल्गो अच्छा फिट हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख दिमाग में आता ही नहीं है। यस यस वो 100 करोड़ के बाद 5 लाख थोड़ा नहीं आता है समझ में, आप समझ गए आप, ठीक है। सो 22 मैंने मान लिया आपकी बात। ओके। सो अगर 50 लाख रुपए आए तो आई थिंक मैं एक सिंपल एक फॉर्मूला देता हूँ आपको। अगर आप पे 50 लाख रुपए आए, जो भी आपकी एज है 22, 100 माइनस 22, जो भी नंबर निकल के आता है, कितना नंबर आता है? 78। 78% should be into Indian equities. Okay. And rest into debt, or you keep it into liquid fund or cash or into gold. Okay. Okay. जैसे आपकी एज 30 होगी, वो कितना हो जाएगा रेशो? कम हो जाएगा, कम हो 70-30 जाएगा, हाँ, इक्विटी। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, तो आपका इक्विटी का एलोकेशन कम होता जाना चाहिए। Okay. बिकॉज आपके EMI भी आएंगी, आपके एक्सपेंसेस भी आएंगे, यू विल गेट मैरिड, देन यू विल हैव किड्स एंड ऑल दैट स्टोरी विल गो ऑन, द इंडियन फैमिली स्टोरी विल गो ऑन, राइट? सो जितना आप सिंपल सा फॉर्मूला लेके चलिए, ठीक है, 100 माइनस योर एज हैज टू बी इन इक्विटीज। दैट्स हाउ वी बिलीव, एंड यू कैन से इट्स अ न्यू एज फॉर्मूला फॉर इन्वेस्टिंग फॉर जेन ज़ी। ओके। बट अभी ये जो इक्विटी में पैसा जाएगा, तो देयर द मनी शुड गो इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आइडली इवन जो इक्विटी में पैसा जाएगा, जो भी आपका एलोकेशन बनता है, उसके अंदर 40% शुड गो टू लार्ज कैप, दैट विल गिव यू सेफ्टी, 30% इनटू मिड कैप एंड 30% इनटू स्मॉल कैप। ओके। और ये भी आपका धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे आप इस इक्विटी प्रोपोर्शन के अंदर भी, जो इक्विटी वाला प्रोपोर्शन है, नॉट डेट एंड गोल्ड वाला, ठीक है, इसके अंदर भी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपको एलोकेशन लार्ज कैप में बढ़ाना है, क्योंकि आपको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, एंड लार्ज कैप विल कम विद लॉट ऑफ सेफ्टी एंड लेसर रिस्क, because as you grow up in life you need more safety rather than speculation. Okay. और यहाँ पर भी जो स्टॉक्स पिक करेंगे, यहाँ पर भी इन्वेस्ट राइटली, स्विच टाइमली, वो आपको स्कीम्स में करना पड़ेगा। यस, ओके। क्योंकि हर म्यूचुअल फंड स्कीम एक जैसा रिटर्न नहीं देती है। म्यूचुअल फंड में अभी अगर हम ये अलोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इक्विटी में अगर कोई लार्ज कैप में स्टॉक्स पिक कर रहा है, हाँ, वो भी आपको स्विच टाइमली करना पड़ेगा, डिपेंडिंग वेयर यू फाइंड द वैल्यू। अल्टीमेटली यू हैव टू सी द पेग रेशियो एंड द वैल्यूएशन ग्रोथ। वैल्यूएशन यू आर बाइंग एट व्हाट प्राइस? I'm sure everyone is smart nowadays. You have so many apps, you have so many research entities, so many websites which give you knowledge. Yes. I'm sure now investors are smart nowadays and they can make it happen. Yeah. Absolutely. And thank you so much for your time. And it's been an absolute pleasure talking to you. And it's been like, एक eye-opener session kind of था. Thank you so much for such, great interaction. Thank you, Bharat bhai. Pleasure is mine. Thank you.